back to our English class. Today we will read the chapter 3, Patriotism. So before beginning students, let me ask you a question that what does it really mean to love our country? Is patriotism only about fighting in wars and making great sacrifices? So let's begin this inspiring story and discover the true meaning of patriotism. Alright, let's start with it. Nanaji, what is patriotism? Asked Ajit. So there is a boy named Ajit who asked his grandfather that Nanaji, what is patriotism? ठीक है, अजीत अपने grandfather से पूछता है कि what is patriotism? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru for dying for our country, for your country, like Bhagat Singh, explained his sister Naina. तो अब अजीत की सिस्टर है जिसका नेम है नैना. What she replied or what she explained कि पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है गांधी जी की तरह जेल जाना और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना या फिर अपनी कंट्री के लिए क्या शहीद हो जाना लाइक भगत सिंह. ऑलराइट, यस नैना, you are right, but it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways, Nanaji said. अब नैना का रिप्लाई और नैना की एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद वहाँ पे नाना जी क्या बोलते हैं कि यस नैना, हाँ नैना तुम ठीक हो, लेकिन इसके अलावा भी पेट्रियोटिज्म का मीनिंग बहुत कुछ होता है. ठीक है, एक पेट्रियट बनने के लिए आपको मरने की यानी कि शहीद होने की या जेल जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपना लव अपनी कंट्री के टुवर्ड्स और भी कई तरीक़ों से शो कर सकते हैं. राइट, सो नाना जी, आई डोंट अंडरस्टैंड. I thought patriotism was all about dying for one's country or making big sacrifices, said Ajit. तब अजीत वहाँ पे क्या बोलता है कि नाना जी मुझे समझ में नहीं आया. ठीक है, मैं तो ये सब सोचता था कि पेट्रियोटिज्म का मतलब केवल होता है अपनी कंट्री के लिए शहीद हो जाना या बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करना. मेरे लिए तो पेट्रियोटिज्म का मतलब केवल यही था. ठीक है बेटा, यू आर राइट. इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस. लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट बेटर. वहाँ पर नाना जी क्या बोलते हैं कि तुम ठीक हो बेटा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं. केवल बड़ी चीज़ों से ही आप पेट्रियट नहीं खिला सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें भी हैं जो आपको पेट्रियट बनाती हैं. सो नाना जी से कि मैं यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिससे तुमको इस चीज़ का मतलब और अच्छे से समझ में आएगा. सो द स्टोरी इज़ अबाउट रियल पीपल एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स बट नॉट टुडे. ठीक है, तो अब यहाँ पर नाना जी बोलते हैं कि अब ये स्टोरी जो है किसके बारे में है? रियल पीपल और उनकी रियल प्रॉब्लम्स के बारे में है. So now let's revise till here. The first question we have is that who explained to Ajit that patriotism means going to jail like Gandhi ji or dying for your country like Bhagat Singh. तो अजीत को ये बात किसने समझाई कि पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है गांधी जी की तरह जेल जाना या अपनी कंट्री के लिए शहीद हो जाना लाइक भगत सिंह. Who explained this thing to Ajit? So option A, Nana ji. Option B, his sister Naina. Option C, his school teacher. Option D, a village elder. So as we have discussed, the correct answer is option number B, that is his sister Naina. Next question, according to Nana ji, how can a person show love for their country? Nana ji के according एक person अपने country के towards love कैसे show कर सकता है? Option A, only by going to jail like Chacha Nehru. Option B, only by fighting in wars on the border. Option C, in many small ways without needing to die or go to jail. Or option D, by leaving their home forever. So guess the correct answer for this question. We have discussed also. So as we know, the correct answer is option number C, in many small ways without needing to die or go to jail. Now, let's come back to the topic. So this Sunday I will take you for a picnic to a small village around 100 kilometers from here and we will spend the day there and return by night. तो नाना जी बोलते हैं कि इस संडे मैं तुम लोगों को एक पिकनिक के लिए लेकर जाऊंगा एक छोटे से विलेज में जो यहाँ से अराउंड 100 किलोमीटर्स डिस्टेंस पर है एंड हम पूरा दिन वहीं स्पेंड करेंगे एंड वहाँ से नाइट में वापस आएंगे. So on Sunday, Nana ji, Naina and Ajit started very early for their picnic. They took the first train to the village Sundarpur. तो अब संडे में क्या होता है, नाना जी, नैना एंड अजीत तीनों ही क्या सुबह सुबह ही पिकनिक के लिए चले जाते हैं एंड वो अपनी पहली ट्रेन जो है विलेज सुंदरपुर के लिए लेते हैं.
2.5 hours later, they found themselves at a small railway station. And around 2.5 hours बाद उन्हें वो अपने आप को कहाँ एक छोटे से रेलवे स्टेशन में पाते हैं. ठीक है. They got down and stepped outside. अब वो ट्रेन से बाहर आते हैं. A large, well-built man wearing a white dhoti and kurta and sporting a huge turban greeted them with folded hands. अब जैसे ही वो ट्रेन से बाहर निकल कर आते हैं, एक बहुत ही लार्ज एंड वेल बिल्ट एक हट्टा कट्टा एक आदमी वहाँ खड़ा होता है जिसने वाइट धोती कुर्ता पहना है, एक बड़ी सी टर्बन अपने सर पे पहनी हुई है. एंड वो क्या करता है, वो आदमी उन तीनों को ग्रीट करता है, उनको वेलकम करता है विद फोल्डेड हैंड्स लाइक दिस. ऑलराइट, चलो. ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट. अब वो उन्हें का एक बुलक कार्ट में बिठाता है. दे ऑल माउंटेड ऑन द कार्ट. द कार्ट ट्रेंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज. ठीक है. अब तीनों ही क्या उस कार्ट पे बैठते हैं. अराउंड हाफ एन आवर बाद उस कार्ट के थ्रू वो फाइनली उस विलेज तक पहुंचते हैं. दे लाइटेड इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ब्रिक हाउस. एंड वो कहाँ जाके खड़े हो जाते हैं, बड़े से घर के आगे जो ब्रिक का बना हुआ था, ईंटों का. An elderly man and a woman came out and greeted Nanaji and fussed over the kids. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. अब एक बहुत ही एल्डर मैन, ठीक है, काफ़ी एल्डर मैन एंड एक वुमेन जो थे उस घर से बाहर आते हैं, नाना जी को ग्रीट करते हैं एंड उसके अलावा वो अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, प्यार करते हैं. ठीक है. दे स्पोक इन अ डायलेक्ट. अब वो किसी लैंग्वेज में बोलते हैं जो नैना और अजीत को समझ नहीं आती है. Then an hour later, अब 1 घंटे बाद, after they had finished their breakfast, जब उनका ब्रेकफास्ट डन हो जाता है, नाना जी took them to a huge people tree. अब नाना जी उनको कहाँ लेके जाते हैं, बड़े से पीपल के पेड़ के पास लेके जाते हैं. where there was a platform, जहाँ पे प्लेटफॉर्म था, बैठने के लिए एक जगह थी. They sat down and नाना जी narrated his story. अब वहाँ जाके वो नीचे बैठते हैं आराम से और नाना जी अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं. Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. तब नाना जी ने स्टोरी सुनाने शुरू करी कि अराउंड 10 years ago, यानी कि करीबन 10 साल पहले, एक यंग मैन था जिसका नेम था आकाश. He was studying to be a doctor. और आकाश जो था वो डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to the USA. तो जब आकाश का MBBS फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो आकाश काफ़ी हार्ड वर्क करता है एंड उसको एक स्कॉलरशिप मिलती है कि वो यूएस से जाता है, स्कॉलरशिप. ठीक है, यूएस से जाने के लिए. ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक. ठीक है. फिर उसके बाद वहाँ से वो अपनी मास्टर डिग्री लेता है, मास्टर्स की पढ़ाई करता है एंड वापस कहाँ आ जाता है, अपने देश में. आकाश फादर वॉज नॉट हैप्पी विद हिज सन डिसीजन. लेकिन आकाश जो है, आकाश के जो फादर थे, ठीक है, वो उससे हैप्पी नहीं थे. उनके बेटे के इस डिसीजन से ही वॉज नॉट हैप्पी. ही वॉन्टेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम एंड अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बट आकाश वॉज अडमेंट. ठीक है. तो आकाश के फादर क्या चाहते थे कि उनका जो बेटा है वो कहाँ, अमेरिका में ही रहे, वही खूब सारा पैसा कमाए. लेकिन आकाश इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था. वॉट हैपन नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया, आस्क्ड नैना. तो नैना पूछती है कि नाना जी फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या आकाश वापस इंडिया आ जाता है. तो नाना जी ने क्या रिप्लाई करा, येस ही डिड. इन द बिगनिंग ही वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी. तो नाना जी बोलते हैं कि हाँ, आकाश जो है अपनी मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वापस अपने देश में आ जाता है एंड सबसे पहले वो कहाँ, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शहर में ही एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है. देन अ ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेज. फिर 1 साल बाद क्या होता है, वहीं आसपास के गांव में एक एपिडेमिक यानी कि एक बहुत बड़ी बीमारी आ जाती है. ठीक है. एंड व्हेन आकाश लर्न अबाउट दैट, ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट. ही डिडंट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स. व्हाई, आस्क्ड अजीत. ठीक है. फिर उसके बाद जब वो वहाँ उतनी बड़ा एपिडेमिक, इतनी बड़ी महामारी आती है, तो आकाश को जैसे ही उसके बारे में पता चलता है, आकाश अपने बैग पैक करता है और वहाँ से चला जाता है. इवन वो अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं करता. ठीक है. नाना जी ने ये सुनाया. तो वहाँ अजीत पूछता है क्यों, ऐसा क्यों. बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सेइंग. ठीक है. क्योंकि अगर वो अपने पेरेंट्स को बताता तो वो आकाश को क्या, उस गांव में जाने से रोक लेते. ठीक है. In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctors who are treating the patients also die. Naina said, yes, Naina is right.
ठीक है। तो अब नैना क्या बोलती है कि साइंस में मैंने पढ़ाई करी है और मैंने सीखा है कि एपिडेमिक्स के दौरान कभी कभी वो डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं वो खुद भी मर जाते हैं। ठीक है। तो नैना यू आर राइट। तो वहाँ पे नैना So now let's revise what we have discussed today. So the question is, how did Nanaji, Naina and Ajit travel to the village of Sundarpur for their Sunday picnic? Nanaji, Naina and Ajit जो है सुंदरपुर विलेज के लिए कैसे जाते हैं अपने संडे पिकनिक बनाने के लिए? So option A, they took the first train. Option B, they drove down in a private car. Option C, they rode all the way on a bullock cart. And option D, they walked from their house. So choose the correct answer over here. Get the correct answer for this question. So how did they travel? The correct answer is option number A, that they took the first train. Next question, what did Akash do after earning his master's degree on a scholarship in the USA? ठीक है, अपनी मास्टर्स डिग्री को अर्न करने के बाद, ठीक है, जो उसे स्कॉलरशिप बेसिस पे मिली थी यूएसए में, आकाश उसके बाद क्या करता है? ऑप्शन ए, he settled down in America to earn a lot of money. Option B, he decided to come back to India. Option C, he opened a private clinic in the city. And option 4, he traveled around the world as a tourist. So just guess the correct answer for it. So as we have discussed, the correct answer is option number B, that he decided to come back to India. Now back to the topic. So 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted to the city hospital in a serious condition. So अब स्टोरी वहीं पर कंटिन्यूड है कि 2 weeks लेटर यानी कि 2 हफ्ते बाद उसके फादर को, आकाश के फादर को एक फ़ोन कॉल आता है और उसमें क्या बताया जाता है कि आकाश को एक सीरियस कंडीशन में सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है. His parents rushed to see him and he was in a very bad state, he could barely speak. ठीक है, तो अब आकाश के पेरेंट्स उसे देखने के लिए जाते हैं तुरंत भागे भागे एंड वो क्या देखते हैं कि आकाश की बहुत ही ख़राब हालत थी, वो बोल भी नहीं पा रहा था. ठीक है, why are you torturing yourself as well as our son? His father asked him while his mother started sobbing. ठीक है, अब आकाश के फादर उससे जाकर पूछते हैं कि क्यों तुम खुद को और हमें दोनों को ही परेशान कर रहे हो. ठीक है, ऐसा आकाश के फादर आकाश से पूछते हैं, वेराज उसकी जो मदर थी, आकाश की मदर जो थी वहाँ पे रो रही थी. ठीक है, आई कांट हेल्प इट फादर, ओके, आई कांट बियर टू सी द पीपल सफ़र, कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. वो आकाश जो है अपने फादर को रिप्लाई करता है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं लोगों को सफ़र करते हुए मैं लोगों को परेशान नहीं देख सकता हूँ. Alright, so your friends are enjoying life in America, earning pots of money and living in comfort, and look at you here. If you don't care about yourself, at least spare a thought for your poor mother. She has gone half mad worrying about you. Alright, so यहाँ पे अब आकाश के फादर से क्या कहते हैं कि तुम देखो तुम्हारे फ्रेंड्स जो हैं अमेरिका में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, वहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और खुद को देखो. ठीक है, अगर तुम खुद के बारे में खुद कोई परवाह नहीं करते तो कम से कम थोड़ा अपनी मदर के बारे में सोचो. ठीक है, वो क्या हो चुकी है, इतनी परेशान रहती है, तुम्हारे बारे में सोच कर उनके बारे में तो सोचो. फादर, ऑल आई कैन से इज दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मेनी लाइफ. वहाँ पर आकाश अप्लाई करता है कि फादर, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात की बहुत तसल्ली है, बहुत सेटिस्फैक्शन है कि मैं इतनी सारी लाइफ, इतनी जान यहाँ पर बचा पा रहा हूँ. Forgive me if I have tortured you. मुझे माफ़ करना अगर मैं आप लोगों को परेशान कर रहा हूँ. After battling for a month, आकाश died in his mother's arms. अब उस बीमारी से लड़ते हुए करीबन 1 मंथ के बाद आकाश जो है अपनी मदर की आर्म में मर जाता है. The entire village was there at his cremation and tears were rolling in everyone's eyes. ठीक है, अब आकाश के डेथ के बाद पूरा गांव वहाँ पे आता है उसके लिए शोक मनाने के लिए. सभी की आंखों में आंसू टपके हैं. Alright, the villagers built a hospital in the memory of Akash and they went to see the hospital. ठीक है, अब वहाँ पे जो गांव वाले थे उन्होंने मिलकर आकाश की मेमोरी में एक हॉस्पिटल बनाया एंड वो वहाँ जाकर हॉस्पिटल को देखने के लिए गए. They stopped in front of a blue board. नैना, please read what is written. ठीक है, अब नैना, अजीत और नाना जी तीनों ही मिलकर कहाँ गए, उस हॉस्पिटल को देखने के लिए गए. ठीक है, तो they stopped, वो तुरंत क्या, उस ब्लू बोर्ड जो उस हॉस्पिटल पे ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ था वो उसके जस्ट सामने जाकर रुक जाते हैं एंड वहाँ पे
नाना जी बोलते हैं कि नैना से बोलते हैं कि प्लीज़ बेटे पढ़ के सुनाओ यहाँ इस बोर्ड पे क्या लिखा है। Akash Memorial Hospital. In memory of Dr. Akash Rai, Naina looked at her grandfather. His eyes were wet with tears. ठीक है, तो अब वहाँ जाने के बाद नैना जो है अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखकर वो पढ़ के सुनाती है उस दो बोर्ड पे क्या लिखा था, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। ठीक है, ये पढ़कर सुनाती है नैना, और जब वो अपने ग्रैंडफादर की तरफ देखती है तो उस ग्रैंडफादर की आईज भी क्या थी, फुल ऑफ टीयर्स, आंखों में उनके भी आंसू थे। नाना जी आस्क्ड आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, व्हाट ही योर्स। ठीक है, तो अब वो बोलते हैं नाना जी आकाश राय। ठीक है, शी वाज श्योर कि आकाश राय आपका सरनेम भी तो क्या है, राय है, तो वॉज ही योर, वो तुम्हारे कौन थे, इतना वो बोलने जाती है तो तुरंत वहाँ पे नाना जी रिप्लाई करते हैं, येस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन, योर मदर्स एल्डर ब्रदर। कि हाँ बेटा वो मेरा कौन था, बेटा। ठीक है, ही वॉज माई सन, आपकी मदर का एल्डर ब्रदर, आप तुम्हारी मम्मी का बड़ा भाई। As a professor of philosophy, I always thought I knew about everything. But my son taught me that the true essence of the term service and the real meaning of the word patriotism. ठीक है, तो नाना जी क्या रिप्लाई करते हैं कि एज अ प्रोफेसर, मैं फिलॉसफी का प्रोफेसर रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मेरा मानना ये था कि मैं सब कुछ जानता, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग, बट मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि सर्विस जो है, सर्विस वर्ड का, सर्विस टर्म का एसेंस, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, या पेट्रियोटिज्म वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ये मुझे मेरे बेटे ने सिखाया। So now let's again recall what we have discussed. Question is that why did Akash say he would not help torturing himself by staying to treat the village epidemic? ठीक है, तो आकाश ने ऐसा क्यों बोला कि वो खुद को टॉर्चर होने से हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, while he was staying to treat the village epidemic. So option A, he wanted to prove his father wrong. Option B, he wanted to earn a higher degree. Option C, he could not bear to see people suffer. And option D, he wanted to become famous in America. So choose the correct answer for this question. So the correct one is option number C, that he could not bear to see the people suffer. Next question, what was Nanaji's professional background and what relationship did he share with Dr. Akash Rai? ठीक है, नाना जी का प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा था एंड डॉक्टर आकाश राय के साथ नाना जी का क्या रिलेशनशिप था। सो ऑप्शन ए, ही वॉज अ मेडिकल डॉक्टर एंड आकाश वॉज हिज असिस्टेंट। ऑप्शन बी, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी एंड आकाश वॉज हिज सन। ऑप्शन सी, ही वॉज अ विलेज स्कूल टीचर एंड आकाश वॉज हिज नेफ्यू। एंड ऑप्शन डी, ही वॉज अ ट्रेन ड्राइवर एंड आकाश वॉज हिज ग्रैंडसन। So guess the correct answer. Choose the correct one for this question. So the correct answer is option number B, that he was a professor of philosophy. नाना जी कौन थे? Philosophy के professor थे and आकाश उनका बेटा। Okay, so students, today we learned that true patriotism is shown through selfless service, okay, and compassion, responsibility, and love for our country and its people. So thank you for watching. If you enjoyed this lesson, don't forget to revise the chapter. Okay, we will meet you in the next video. Till then, keep learning, keep smiling, and happy learning.